السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبر کا صلہ۔ جب قبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہے ہوتے ہو تب وہ رب تمہیں تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی ہیں تم پر، ان میں اللہ پاک کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ پاک کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں وسوسے نہیں ہوں گے تب اللہ پاک معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک عام کی طرف جایا نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور نصیب میں اگر بہتر ہوگا جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم اللہ پاک پر کامل یقین رکھتے ہوئے دعائیں کرتے رہتے ہو تو اللہ پاک کہیں نہ کہیں تمہارے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جانتے ہو تم اللہ پاک کو بہت محبوب ہو کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلہ مقدر پر بھاری ہے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ پاک نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے، نہ کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ پاک سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ پاک اسے منکر کرتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے صبر کے بدلے اللہ پاک نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ پاک کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ پاک نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو آیا رکھا ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ جب اللہ پاک کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ پاک سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے، اور بہت جلد اللہ پاک تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک ہی سن سکتا ہے، اور وہ فرماتا ہے اے سکتی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور اللہ پاک کن فرما دیتا ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ پاک سے مانگتے ہو
हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है। उसको हया आती है तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए जब तुम उससे रहम मांगते हो। जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो खुद से वही कहो जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांगकर कभी भी महरूम नहीं रहूंगा। खूबसूरत कहानियाँ हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, इनमें सब्र, तवक्ल और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान नुज़ूल मोजिज़ों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब इंसान हजार गुनाह के बाद उसकी तरफ पलटता है, रूठी फूटी ही सही उससे माफ़ी मांगता है, कच्ची पक्की ही सही उससे तौबा की तड़प मांगता है। यह सारी फरियाद भी अल्लाह पाक को बहुत प्यारी हैं, वो माफ़ कर देता है। दुआओं में तासीर आपकी तरफ से आती है और ताकि आपकी बेहतरी के लिए होती है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंद नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, रूह की तलब और कैफियत का नाम है। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह पाक के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक जवाब में अपनी रहमत झोली में डाल देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होता अल्लाह पाक तुम्हारी अक्सर ख्वाहिश को रद्द करके तुम्हें कितने अजाब से बचाता है। अल्लाह पाक किसी को मायूस नहीं करता, उससे मांगते रहो, एक दिन या तो वो तुम्हें अता करने के बाद पुरसुकून कर देगा, वरना इस एहसास से बेनियाज करके मालामाल कर देगा। बस यकीन रखो उस रब पर। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। दुआ करते रहा करो। दुआ ऐसी इबादत है जो अल्लाह पाक से हर बात मनवा लेती है। अगर अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं पूरी कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआएं पूरी करने में देर कर रहा है तो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए हमेशा दुआ मांगते रहा करो। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मार दे सकता है। खूबसूरत जिंदगी का राज दुआ की जाए, दुआ दी जाए, दुआ ली जाए। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। मुझे अपने अल्लाह पाक से मांगी हुई हर दुआ की कबूलियत पर यकीन है, क्योंकि अल्लाह पाक के आगे रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगी जाने वाली दुआएं कभी भी जाया नहीं जाती और मेरा अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदे को मायूस नहीं करता। मायूस तो तुम खुद करते हो अपने आप को जब हम दुआ मांगना छोड़ देते हैं यह कहकर कि दुआ कबूल नहीं होती या शायद किस्मत में नहीं। मगर हमेशा याद रखना कि अल्लाह पाक अपने कुछ बंदों की दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं करता, क्योंकि उसे बार बार अपने बंदे का मांगना पसंद आ जाता है। और बेशक अल्लाह पाक उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो बेहद प्यार करता है। अल्लाह पाक हर दुआ का जवाब देता है, बस जरिए मुख्तलिफ होते हैं। कभी वो किसी इंसान को आप से मिलवाकर जवाब देता है और कभी उसे आप से दूर करके, कभी वो हवाओं के हाथ पैगाम भेजता है तो कभी अपना जवाब किसी ठोकर में छुपा देता है। कभी वो सजदे में गिराकर अपनी मसहज है और कभी हाथ थमाकर सब्र का सिला देता है। आजमाइश का आना और रूह का रेजा रेजा होकर बिखर जाना बेवजह नहीं है। कभी तकलीफ में हो तो अल्लाह पाक को महसूस करना, फिर उसकी मौजूदगी भी दिखाई देगी और उसकी सरगोशी भी सुनाई देगी। तड़प दिल में वो तभी उतारता है जब वो तुम्हें याद करता है, फिर तब वो चाहता है तुम उससे बातें करो, उसे अपनी कैफियत सुनाओ, अपनी सारी परेशानियां उसकी दहलीज पर छोड़ाओ, हर फैसला उसके सुपुर्द कर आओ, ताकि बस तुम और अल्लाह पाक रह जाए। फिर से मुस्कुराओ और सब भूल जाओ। मिठास तो फिर बस उसी के जिक्र में है और सुकून के लिए तो उसका नाम ही काफी है। तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे साथ अल्लाह पाक है और जिसके साथ वो है उसके साथ तो पूरी कायनात की रौनक चलती है। दुआ इबादत का मकसद है, दुआ में इंतहा आजीज होती है। इसी वजह से कोई दुआ जाया नहीं होती। अगर फौरन कबूल ना हो तो या कोई तो मुसीबत टाली जाती है या दुआ आखिरत के लिए जखीरा बन जाती है। मोजज़े होते हैं, खामोश खौफ सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल जुड़ जाते हैं। यह सब वही है जो नमाज दुआ से होता है। अल्लाह पाक जब तौफीक दुआ तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा लिख देता है तो कबूलियत के मोजज़े खुद ब खुद होने लगते हैं। मोजज़ों की राह तो अल्लाह पाक आखिरी सांस तक खुली रखता है। तो तुम तब भी दुआ करते रहना जब तुम्हारे पास कबूलियत की कोई भी वजह बाकी ना रहे, क्योंकि बेबस तुम हो
वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। दुआ है, दुआ यकीन है, दुआ उम्मीद है, दुआ भरोसा है, दुआ गुफ्तगू है, दुआ पाकीज़ा वसीला है, दुआ हौसला है, दुआ मोहब्बत है, दुआ राज है, दुआ हमदर्द है, दुआ ताकत है, दुआ से कायनात है। और मेरी यह दुआ है, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारी दुआएं तुम्हारी जुबान से अदा होने से पहले ही कबूल हो जाती हैं, बस उनके मिलने का वक्त तुम्हारे मांगे हुए वक्त से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मोज़े दुआओं से ही तो होते हैं। और वो दुआ जो मुंह से निकलते ही कबूलियत के मरहाल में दाखिल हो जाती है वो टूटे हुए दिल की दुआ है। बस फिर जो मांग लिया जाता है उसकी अता में देरी नहीं की जाती। फिर वो सय भले ही तुम्हारे नसीब का हिस्सा ना हो। क्या तुमने सुना नहीं है तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। सब कुछ दुआ की कबूलियत आपके अंदर होती है जब आपका इखलास, आपकी नियत, आपकी कारकर्दगी, आपका इस तरह एक फ्रेंक्यूसी पर जमा हो जाए तो दुआ की कबूलियत यकीनी है। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो बस तुमसे एक दुआ दूर हो, अल्लाह पाक जाया नहीं करेगा तुम्हारी दुआ, तुम्हारा सब्र। जरा इंतजार करो। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही नहीं जाता। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं बेहतरी से पहले देरी करता हूँ और मैं उन्हीं को आजमाता हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। दुआ एड़ियाँ रगड़ने पर आ जाएं तो जमजम को जारी होना पड़ता है। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, यह वादा है अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तुम्हारी बेहतरी के लिए ताक़ी जरूर करता है लेकिन वो भूलता नहीं है और तकदीर के एक इशारे पर बदल जाया करती हैं और तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाया करती है। तुम यकीन तो रखो वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। वो कह चुका है कि तुम चाह भी नहीं सकते जब तक अल्लाह पाक ना चाहे। तो फिर मान लो कि उसने चाहा है ऐसा होना, तभी वो तुम्हें यहाँ तक लाया है। अल्लाह पाक तुम्हें तब तक तोड़ता है जब तक तुम उससे जुड़ नहीं जाते। वो तुम्हें तब तक बेसुकून रखता है जब तक तुम अपना सुकून उसमें तलाश नहीं कर लेते। वो तब तक तुम्हें आजी मोहब्बतों की तलब लगाए रखता है जब तक तुम उसकी मोहब्बत की पहचान नहीं कर लेते। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो जख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है। सब कुछ तवक्कुल के दो मरहले होते हैं। एक वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा और दूसरा वो जब इस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और उस सारी तलक का मदावा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुमने हंसकर पी गए थे। और फिर जब तुम अल्लाह पाक की रजा को अपनी रजा मान लेते हो फिर अल्लाह पाक भी तुम्हारे दिल को सुकून बख्शता है। हकीकतों को कबूल करना सीखो। हालात जैसे भी हों अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो क्योंकि एक वही तो है जो हर हाल में भी हमारे साथ रहता है। देखना एक दिन तुम शुक्र के सजदों में होगे और आंसुओं से तुम्हारा चेहरा और जानमाज भीग चुकी होगी। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि किस तरह उस रब का शुक्र अदा करोगे। तुम्हारी वो दुआ जो तुम्हें हर नमाज में याद आती है, जो तुम सजदों में गिरकर मांगते हो, जो तुम्हें बेचैन करती है, वो जरूर कबूल होगी। वो सदाओं का जवाब देता है। यकीन करो जितना हो सके लोगों से दुआएं लेने की कोशिश करें। इस दौर में दुआ बहुत कीमती तोहफा है। अगर आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो आप बहुत अमीर और खुशकिस्मत इंसान हो। और सारी बात तो तलब की है। जब तलब बढ़ती है तो तड़प भी बढ़ जाती है और जब तड़प बढ़ जाती है तब दर्द भी हद से ज्यादा बढ़ जाता है और जब दर्द तमाम हदों को तोड़ता है तो आंसुओं के रास्ते से बहता है। तब इंसान खुद ब खुद
में गिर जाता है और फिर दर्द का सजदा हो और रब ना मिले, मुमकिन ही नहीं। जब तुम्हारी कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जहां तुम बेबस हो, कोई रास्ता नजर ना आए, सब्र अपने आखिरी हदों को पहुंच जाए, तो जान लेना अल्लाह पाक अनजाने रास्तों से तुम्हारे लिए मदद भेजने वाला है। तुम्हारी आजमाइश का खत्म हो चुका है, अब वो तुम्हें मोजज़ों की राह दिखाने वाला है। यह वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो यह मुश्किल थोड़ी सी बाकी रह गई है। प्यारे दिनों का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। जहां अल्लाह पाक होगा तुम्हारे साथ, अल्लाह पाक तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह पाक को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है, वो कभी भी तुम्हें उस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह पाक कुन कहना कहे तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। घबराओ नहीं, परेशान ना हो, ना उम्मीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है। तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा। यह देर वक्त तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है, बस थोड़ा और सब्र, फिर अल्लाह पाक कुन कह देगा और फयाकुन के मोजज़े तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा। अल्लाह पाक पर पुख्ता यकीन रखो, क्योंकि यकीन जितना ज्यादा होगा दुआएं उतनी जल्दी कबूल होंगी और तुम्हारी चाहत का दरवाजा खुल जाएगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी पसंद से अल्लाह पाक तुम्हें आजमाता रहा है, हर लम्हा तुम्हारा अजर बढ़ा रहा है। कुछ देर के लिए तुम्हारी निगाहों से दूर करके तुम्हारी चाहत को नसीब का हिस्सा बना रहा है। अल्लाह पाक को मोहब्बत है बहुत ही ज्यादा तुमसे, तभी तो अपने कुर्ब से वो तुम्हें नवाज रहा है। तुम्हारा दिल मुख्तलिफ अंदेशों से डरता रहता है, यह शैतान तुम्हें वसवसे में डाल रहा है। जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी में बहारें ला रहा है। दुआ की तरफ हम नहीं जाते, अल्लाह पाक ही हमसे दुआ करवाता है। अगर अल्लाह पाक ने दिल में किसी चीज की ख्वाहिश डाली है और लब पर उस चीज के लिए दुआएं लाई हैं, तो समझ जाएं वो चीज आपके लिए ही बनी है। बस आपको सब्र, यकीन, इंतजार और आजमाइश से गुजरकर वहां पहुंचना है। अल्लाह पाक से कतरा कतरा मत मांगो, समंदर मांगो पूरा, क्योंकि वो इख्तियार कुन रखता है और इससे बढ़कर उस जात की शान क्या होगी कि वो कुन कहता है और सब हो जाता है। घबराओ नहीं, यह मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे अल्लाह पाक पर तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा। नजरअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह पाक से, फिर देखो कैसे तुम्हारी सब मुश्किलात का हल निकल आएगा। अच्छे लोगों से अल्लाह पाक का इम्तिहान बहुत लेता है पर साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को बहुत कुछ देता है पर साथ नहीं देता। जब तुम नामुमकिन हालात के बावजूद दुआ मांगना नहीं छोड़ते, तो अल्लाह पाक तुम्हें मोजज़ों की राह दिखाता है। चाहे सारी दुनिया मिलकर तुम्हें मायूसी की तरफ ढकेले, तब भी अगर तुम अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हो, तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए गैब से वसीले बनाता है। दुआओं पर यकीन ही, तुम्हारी दुआओं पर यकीन ही हमारी तकदीर बदलती है और वो हो जाता है जिसका हमें कभी तसव्वुर भी नहीं होता। मुमकिन है कि जिस दुआओं की कबूलियत को तुम यकीन से मांगते हो, यही यकीन तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचा दे कि वो मुझे नवाज देगा, तो मुझे यकीन उस पर कि वो एक दिन मुझे जरूर नवाजेगा। वो मेरी हर नामुमकिन दुआओं को भी कबूल कर लेगा। अल्लाह पाक प्यास से गुजार कर ही हजरत हाजरा को पानी के चश्मे तक लाया था। मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारा भी इस आजमाइश से गुजरना जरूरी है। दुआएं भी क्या लाजवाब कर देती हैं, जो हर बंदे के लिए अर्श तक सफर करती हैं और फिर वहां पहुंचकर कहती हैं कि वापसी का सफर कबूलियत लेकर ही तय होगा। नामुमकिन तो तुम्हारी नजर में है, अल्लाह पाक के लिए तो
कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो कहेगा कुन और फयाकुन हो जाएगा, हकीकत बन जाएगी। वो दुआएं भी जो अरसे से मांगना तूने छोड़ी नहीं, वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है, और उसने तुम्हारी उन बेसुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में उसे याद रख सको, और वो तुम्हें तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी हिस्सा को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी मुश्किलात, आजमाइश, ख्वाहिश और नामुमकिन हालात को बता दें कि आपका अल्लाह पाक सबसे बड़ा है। आपकी दस्तरस में सारे जहां और उसका एक कुन पूरी कायनात को हिलाकर रख सकता है, तो फिर क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन, सब कुछ सिर्फ आपकी दुआ के फासले पर है। फिर आपने सब्र करना है, यकीन रखना है, और अल्लाह पाक ने तो कबूलियत का वादा कर रखा है, सच्चा और पक्का, उसे सब याद है। तुम्हारा रातों को उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़ों का इंतजार करना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी जुस्तजू, वो कुछ भी नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा खास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज से मिलवा देगा। अल्लाह पाक को छोड़ोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा सा सब्र और सही फिर देखो, जो अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। गम न करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। एक हार पर उस फतेह को भूल गए हो जिससे अल्लाह पाक ने तुम्हें हमकिनार किया है। अल्लाह पाक की रहमतों को याद करो और जहनसी कर लो कि तुम्हारा रब हर शय पर कामिल है। फिर मायूस मत होना, दिल से निकली हुई हर एक दुआ हर गुमान को हकीकत में बदल देती है, और अल्लाह पाक तुम्हें खौफ तब दिखाता है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है, वरना अगर उसने तुम्हें वो न देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता। तबक वो रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो एड़ियों से जमजम निकलवा देता है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हजरत यूसुफ को हजरत याकूब से मिलवा देता है, जो शदीद तूफान में कश्ती नूह पार लगा देता है। तो फिर क्या तुम अपने रब पर तवक्ल नहीं करोगे जो नामुमकिन को मुमकिन करने में बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह पाक की रजा के लिए किया। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें क्योंकि जिसके इख्तियार में है वो बड़ा गफूर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा होता है, बस सब्र करें, वो नवाजने वाली जात नवाजेगी। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएगी। सब्र की एक शर्त होती है, यह सिर्फ उसी मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई शिकवा ना हो। मैंने पूछा कब तक सब्र करना पड़ेगा, मुझे जवाब आया तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब हो। किसी का मुसलसल सब्र आजमाना भी गुनाह है। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। हम समंदर की तरह चुप हैं कि हम जानते हैं हम अगर सब्र ना करते तो कयामत करते, और बाद जब मकाफत अमल पर आ जाए तो इंतजार खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। सब्र से रहमत का इंतजार करो, जो चीज तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है, और देर सिर्फ हिकमत पर मबस होती है। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। जब तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस से बाहर हो तो सब्र कर और अल्लाह पाक की तरफ से कुसादगी का इंतजार कर। जिस शख्स को अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो जिंदगी में किसी भी वाक्य के रोनुमा होने पर शिकवा नहीं करता। जिंदगी की किताब से सब राग हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा बरक सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कर लेना चाहिए। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। नसीब और मुकद्दर सब्र से मिलता है। सब्र रखें, ना ही धूप रहती है ज्यादा देर न छाँव। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। सब्र का रास्ता शुरू में किसी तौर पर आसान नहीं होता,
बहुत ही मुश्किल होता है। अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन कामिल रखें। सुकून के साथ बेहतरीन मुतबादिल भी मिलता है। सब्र रखो, वो दिन भी आएगा जब दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद, यकीन। तुम्हें गिराने वाले एक दिन खुद गिरेंगे। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद है उसका इंतजार करना। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जो शख्स सब्र करता है वो आखिरकार अपने मकसद को पा लेता है। कुछ लोगों की खामोशी उनका सब्र होता है। सब्र रक्त बंदे कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। सब्र खामोशी और लाताल्लुक बेहतरीन इंतकाम है। सब्र करना, कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जमाने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त ना हो, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है मगर उसका फल मीठा होता है। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। वो रब आहट भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। सब्र रख, खुशियां नहीं ठहरे तो गम की क्या औकात है। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस सब्र आजमाता है। सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और हम एक कतरे के लिए जिद कर रहे हों, सो बेहतर है सब्र करो। छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती हैं। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो, अल्लाह पाक से बातें करें। खुश हो, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो। मुश्किल में हो, अल्लाह पाक से मदद मांगो। डिप्रेशन में हो, अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना हो करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक तुम दूसरों के दिल आपकी वजह से बेशक रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना, अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ ना पकड़ सके वहां लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को ना मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे ले लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन
इंसान हो, गमों से परेशान ना हुआ करो तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करते हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे बसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदाजी करें, और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सब्र करना, दरगुजार करना, खुश रहना सब अनमोल खजाने का हिस्सा है, और यह हर शख्स को नहीं आता। हाँ, माना कि बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, पर सब्र तो सिर्फ अल्लाह पाक के महबूब बंदे ही कर पाते हैं। वो महबूब बंदे जिन्हें अल्लाह पाक पर कामिल यकीन हो। बेशक सब्र जन्नत में शहद की नदी की तरह होता है। जितना सब्र यहाँ करोगे उतनी ही इज्जत तुम्हें दूसरे जहान में दी जाएगी। जिंदगी कितनी अजीब सी होती है। जिंदगी के हर राह पर सब्र, कुछ दिल करे तो सब्र, कहीं जाना हो तो सब्र, कुछ खाना हो तो सब्र, कुछ मनपसंद चीजें लेनी हो तो सब्र, किसी ने बेइज्जती कर दी तो सब्र, कोई दिल के बहुत करीबी रिश्ते टूट गए तो सब्र, हर चीज में सब्र। मुझे लगता है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सब्र हर मसलों का बादशाह है। वैसे बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, रूहें कांप जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा अजर नहीं रखा। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, और यह हर शख्स की बात नहीं होती। सब्र करने वाला शख्स इतना टूट जाता है कि खामोश हो जाता है। न उसे कोई चीज खुशी दे सकती है, ना ही कोई चीज गम। कोई हालात में तो उनके आंसू भी सूख जाते हैं। उनका दिल रो रो कर तड़प तड़प कर भी थक जाता है। जिंदगी और कुछ नहीं, सब्र का नाम है। अगर किसी शख्स को यह लगे कि मुझे ही इतना सब्र करना पड़ता है तो उसे अपने जहन में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन्हीं के साथ होता है जो सब्र करते हैं। तुम कभी महसूस करोगे तुम हमेशा अपनी जात अल्लाह पाक को पाओगे, और यह भी तो समझने की बात है, हर शख्स में तबक नहीं होता, और जब तबक नहीं होगा तो इंसान को अल्लाह पाक की दी हुई कोई नेमत नहीं लगेगी। वो हर नेमतों को जुटलाता रहेगा। बंदा क्यों नहीं समझता कि सब्र अल्लाह पाक से की गई मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। बहुत जल्द अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। तुम्हारी वो तकलीफ जो तुम्हारे दिल को हर वक्त बेहाल रखती है, तुम्हारे वजूद को किरचियों में तकसीम कर देती है, जिसकी वजह से तुम सजदों में टूट कर रोते हो, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगा। वो बदल देगा तुम्हारे हालात भी, तुम्हारे सिसकते हुए दिन भी, और तुम्हारी जिंदगी भी। वो सारी उम्र गम का मौसम नहीं रहने देता। वो तो रहमान है, ऐसा रहमान जो अगर आजमाइश में भी लाता है तो हमारी ताकत के मुताबिक वो अपने बंदे पर हरगिज ऐसा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना पाए। जिसने तुम्हें उस आजमाइश में डाला है वही तुम्हें इससे निकालेगा। तुम्हारी आंख भले ही उसको देख ना पाए, लेकिन तुम्हारा वक्त हर लम्हे उसकी नजर में कुरान में आता है। दरख्त का कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसके गिरने का इल्म उसे ना हो। जिस तकलीफ ने तुम्हारे दिल को बेहाल रखा हुआ है, तुम्हारे वजूद को निढाल किया हुआ है, भला वो उस तकलीफ से वाकिफ नहीं होगा। तो सब्र रखो और इस बात पर यकीन करो अब तक जो हुआ उसमें उसकी रजा थी, और अगर वो तुम्हें बहुत सी तकलीफों से गुजार रहा है उसके बावजूद कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब यही नहीं वो तुम्हें सुन नहीं रहा, तुम्हारे सशक्ते सजदे देख नहीं पा रहा, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी फतह के लिए तैयार कर रहा है। वो जल्द ऐसा कोई रास्ता निकालेगा, कोई ऐसा वसीला बनाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो बहुत कुछ देने से पहले आजमाता है ताकि तुम गम का मजा चखो और उसके बाद मिलने वाली खुशियों की कदर कर सको। नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।